Assalamualaikum students, it's me Dr. Shadab, your practical teacher for Introductory Plant Breeding PBG 401, and today we will discuss the selfing and crossing techniques in maize. As we have discussed in our another video which we will shoot in the field, where we can see the male and female parts, they are on the same plant but on the different position. On the top of the plant there was a tassel which you can see, which was the male part, and on the lower side there were the different female flower which were the cob, we can say in other native language that's a chili, which we use as a edible purpose after different ways. And first of all, what are the requirement for the selfing and crossing techniques procedure in the wheat? नंबर वन, वी नीड द पेयर ऑफ सीजर, जिसको हम कैंची भी कहते हैं, जो पॉइंटेड होने चाहिए. पेयर ऑफ सीजर शुड बी पॉइंटेड. एंड कैमल हेयर ब्रश इज लाइक द makeup powder, makeup brush which have the fine brush, fine hairs at the end which can pick the pollen and dust into the female part. And craft paper bag that the 14 into 11 inches, 14 inches length and 11 inch wide. And next one is a butter paper bag which we use for the cob, that's a 7 into 3 inches. And the petri dish where we collect the anthers. And then next one is a methylated spirit. Why we use the methylated spirit? Because when we use the same instruments on the same plant, that's okay, and when we use the same instrument on another plant, that's cause the difficulty, because it's called the pollen deterioration, or you can say that foreign pollen attached with the instruments that cause the difficulties in what sense difficulties they cause? Outcrossing, or you can say cross pollination. We don't want to use that pollen in another. तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये पोलन हमने ये इनको जो स्टेरलाइजेशन इस वजह से भी करनी है कि हम एक तो उनकी सफाई जो उसको साफ करना चाहते हैं, वी वांट टू स्टेरलाइज अवर इंस्ट्रूमेंट. एंड सेकंड वन, टू अवॉइड द चांस ऑफ कंटेमिनेशन, कि हम उसके अंदर अपनी कंटेमिनेशन का चांस जो वो कम से कम करना चाहते हैं. देन प्रोसीजर क्या है इसके अंदर? मेज आप लोगों ने पढ़ा कि जो मेज का नेम है दैट इज जिया मेज, एंड मेज इज नेचुरली क्रॉस पोलिनेटेड. आपने इसका जो मेज का प्लांट भी देखा है दैट अलोज क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि जो टॉप पोर्शन है वहां से जब उसमें लोअर पोर्शन पे आना है पोलन है, तो उसके अंदर बहुत कम चांस होता है कि वो उसी प्लांट का जो फीमेल है उसको पोलिनेट करे. तो मेज के अंदर जो पोलन है दैट हैव एबिलिटी टू ट्रैवल अबाउट 1 किलोमीटर रेडियस, कि अगर यहाँ पे अगर आप जहाँ पे बैठे हैं उधर एक मेज का प्लांट है, तो दैट हैव एबिलिटी टू पोलिनेट 1 किलोमीटर रेडियस, दैट वेयर अदर मेज प्लांट इज planted, that pollen travel through wind and that can pollinate that other plant, maize plant. That's a possibility. Maize is naturally cross pollinated crop, and staminate flowers are produced on the tassel. As we have discussed that male flower, staminate flowers are produced on the tassel, and pistillate flowers are on the shoot which is cob, or you can say chili. Pollen shedding start 1 to 3 days बिफोर द अपेयरेंस ऑफ सिल्क. जो सिल्क है मैंने आपको आज की वीडियो से पहले जो दूसरी वीडियो है जो हमने फील्ड के अंदर शूट किया, इसके अंदर मैंने दिखाया था कि जो सिल्क जो जिसको बाल से जो कॉप से बाहर सिल्क टाइप इमर्जेंस होती है तब उसकी अपेयरेंस स्टार्ट होती है. पोलन शेडिंग स्टार्ट 1 और 2 थ्रेज बिफोर, के पोलन शेडिंग या जो पोलन है वो पहले मिच्योर हो जाता है एज कंपेयर टू जो उसकी कॉप है. कॉप का हमें किस तरह से पता चलता है? दैट इज रेडी फॉर पोलिनेशन, कि जब उसकी सिल्क इमर्जेंस स्टार्ट होती है. तो दैट पोलन इज रिमेन वायबल, जो मेज का पोलन है दैट रिमेन वायबल 18 से 24 घंटे के लिए, कि दैट्स वेरी लॉन्ग पीरियड, कि 18 और टू 24 और अबाउट 1 डे दैट इज रिमेन वायबल, कि आप वहाँ से पोलन कलेक्ट करके उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर पे अगर फ्रीज भी कर लेते हैं, जिसको इंक्यूबेशन टेम्परेचर कहते हैं, इंक्यूबेट करवा के देन नेक्स्ट डे भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं. लेकिन
अगर हमने कोई पोलिनेशन करवानी है तो ब्रीडर का फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है कि एट द सेम टाइम उसको पोलन को यूटिलाइज किया जाए। जो फेवरेबल कंडीशन है उसके अंदर ये 18 से जो 24 घंटे वहां तक ये पोलन वायबल रहता है, ठीक है। देन अगर इफ यू वांट टू डू द सेल्फिंग ऑफ मेज, नंबर वन यू हैव टू सेलेक्ट द डिजायरेबल प्लांट एंड कवर द टेसल, जो उसका मेल पार्ट है अपर पार्ट को आपने बैग करना है, एंड विद द हेल्प ऑफ क्राफ्ट पेपर बैग विच हैव 11 into 14, जो उसकी डायमेंशन है 14 into 11 इंचेस, बिफोर द ओपनिंग ऑफ एंथर। जब वो उसके एंथर्स मिच्योर नहीं होते उससे पहले आपने इसको कवर करना है। वो हमने शाम में जाना है, इवनिंग में जाके हमने मेल एंड फीमेल दोनों को सिलेक्ट कर लिया कि जो मेल है एक ही, अगर सेल्फिंग करवानी है तो सिमिलर प्लांट की मेल फीमेल दोनों को आपने कवर करना है। जो मेल या टेसल है उसको आपने कवर करना है विद द हेल्प ऑफ क्राफ्ट पेपर बैग, एंड जो फीमेल जो कॉब है उसको आपने कवर करना है विद द हेल्प ऑफ बटर पेपर बैग विच हैव द डायमेंशन ऑफ 7 into 3 inches. Bag the ear shoot which is female of the same plant before the emergence of silk, जब उसकी सिल्क emergence होने से पहले ही आपने इसको डेली विजिट द प्लांट एंड ऑब्जर्व द अपीयरेंस ऑफ सिल्क, के आपने उसके अंदर जाके ऑब्जर्व करना है उसका जो फीमेल का बैग है उसको रिस्पेक्टिव बैग को रिमूव करना है। आपने देखना उसके अंदर जो सिल्क है जो धागे टाइप है जो हमने दूसरी वीडियो के अंदर आपको दिखाए भी थे, दैट वर पिंकिश कलर, एंड बिफोर द पोलिनेशन दे आर पिंकिश एंड आफ्टर द पोलिनेशन दे टर्न ब्लैक, वो ब्लैक कलर की तरफ चले जाते हैं जब उनकी पोलिनेशन हो जाती है। देन व्हेन सिल्क अपीयर, जब उसके अंदर सिल्क बनना शुरू हो जाते हैं, आप क्या करते हैं, आप ऊपर से वो टेसल वाला बैग है उसको रिमूव करते हैं, आप उसमें से एंथर्स जो है वो पेट्री डिश के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। पेट्री डिश के अंदर कलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को कलेक्ट किया किसके अंदर, आपने पेट्री डिश के अंदर। रिमूव द बटर पेपर बैग फ्रॉम द ईयर शूट, जो आपने ईयर शूट है उसके आपने रिमूव किया बटर पेपर पैड को। आपने पहले ये चीज भी देखनी है कि जो कॉब है, कॉब के अंदर जो सिल्क मर्जेंस है दैट शुड नॉट बी एक्सीड देन 1 इंच। अगर वो 1 इंच से ज्यादा है तो रिमेनिंग आपने कटिंग कर देनी, जो हमने कल दूसरी वीडियो के अंदर कटिंग करके आपको मैंने दिखाया भी था। अगर उसकी लेंथ ज्यादा है तो आपने उसकी कटिंग कर देनी है, जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा पार्ट जो। तो आपने अगेन कवर कर देना रिस्पेक्टिव बैग के साथ जब उसकी पोलिनेशन करवानी है। और आपने जो पोलिनेशन है मेज के, आपने देखा जितने दाने दैट इज एवरी सीड। तो सक्सेसफुल पोलिनेशन के लिए आप क्या करते हैं, आप उसकी 4 to 5 टाइम कंटिन्यूस पोलिनेशन करवाते हैं कि कोई एक रह ना जाए, जो आपकी कॉब के अंदर कोई भी एक जो ग्रेन है दैट शुड बी पोलिनेटेड। अगर पोलिनेशन होगी तो दैट विल बी टर्न टू ग्रेन, and leave the bag on the shoot till the setting seed setting and avoid the chance of pollen contamination। pollen contamination आप किस तरह रोक सकते हैं कि आपने जो उसका बैग रिमूव किया था आफ्टर पोलिनेशन सेम बैग के साथ आपने उसको कवर कर दिया, ठीक है ना। तो स्टेरलाइज योर इंस्ट्रूमेंट्स विद एंड योर हैंड विद द हेल्प ऑफ मिथाइलेटेड स्पिरिट आफ्टर मूविंग टू द नेक्स्ट प्लांट, कि आपने जो एक प्लांट की सेल्फिंग करवाई उसके बाद आप जब दूसरे प्लांट पे जाने लगे आपने अपने हाथों को भी और आपने अपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया उनको भी स्टरलाइज करना है टू अवॉइड द चांस ऑफ कंटेमिनेशन। देन आपने लेबलिंग कर देनी है, लेबलिंग टैग द सेल्फ प्लांट शोइंग द नेम ऑफ वैरायटी, के आपने इसके ऊपर वैरायटी का नेम लिखना है। देन आपने क्या करना है, डेट ऑफ पोलिनेशन आपने लिख देनी है और आपने साइन कर देने हैं। क्रॉस पोलिनेशन के अंदर 4 चीजें वो हम अभी लेटर डिस्कस करते हैं लेबलिंग के अंदर, लेकिन जो सेल्फ पोलिनेशन है उसके अंदर 3 चीजें हैं। नेम ऑफ जो वैरायटी है, क्योंकि क्रॉस तो होगा नहीं, और इसके अंदर हमने मैस्कुलेशन भी नहीं करनी, सिर्फ डेट ऑफ पोलिनेशन आएगा एंड योर सिग्नेचर। राइट, प्लीज ट्राई टू यूज द लेड पेंसिल, आपने बारकोड यूज नहीं करने, ओनली यूज द लेड पेंसिल, ठीक है, क्योंकि ये बारिश से और दूसरे मौसमी असरात से इसका फेड नहीं होती। देन क्रॉसिंग, क्रॉसिंग के लिए आपने क्या करना है, इस सेल्फिंग में हमने एक ही प्लांट में से मेल और फीमेल, क्योंकि इसके अंदर मेल फीमेल फ्लावर जो वो डिफरेंट पोजीशंस है, तो हमने अगर क्रॉसिंग करवानी है तो क्या करते हैं कि ट्रीट द वैरायटी ए एज फीमेल पेरेंट, कि आपने ए वैरायटी को फीमेल पेरेंट ले लिया और जो बी वैरायटी है उसको आपने फीमेल पेरेंट ले लिया, सॉरी मेल पेरेंट ले लिया। आपने क्या करना है, रिमूव द टेसल, जो आपने ऊपर टेसल है उसको रिमूव कर दिया, मेल पार्ट है आपने वैसे ही खत्म कर दिया जिसको आपने
जिसकी ईयर आपने, जिसकी छल्ली आपने यूज़ करनी है एज ए फीमेल पेरेंट। तो आपने जो फीमेल था उसको बटर पेपर बैग के साथ कवर कर दिया, जिसकी डायमेंशन क्या थी, 7 into 3 इंचज बिफोर द इमरजेंस ऑफ सिल्क, कि उसकी जो सिल्क बनने से पहले या नजर आने से पहले ही आपने इसको कवर कर दिया। देन यूज द वैरायटी बी, जो दूसरा प्लांट है उसको आपने वैरायटी बी कंसीडर किया, जिसमें से आपने पोलन कलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। उनके पोलन कलेक्ट करने आपने उसको डिजायरेबल प्लांट को आपने सिलेक्ट किया, देन आपने उसको क्राफ्ट पेपर बैग जिसकी डायमेंशन थी 14 into 11 इंचेस, और उसके अंदर अभी आपको पता है कि इमेच्योर एंथर्स हैं, टेसल अभी कंप्लीट तरह मेच्योर नहीं हुआ, एंथर्स राइपन नहीं हुए, पोलन ग्रेन्स अभी बर्स्ट नहीं हुए, तो आपने इमेच्योर जो है उसको कवर कर देना है। आपने विजिट करना है इमरजेंस ऑफ स्किल, जो सिल्क है, जो कॉप है उसके अंदर सिल्क फॉर्मेशन तो नहीं अभी हुई, जब तक सिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट होती है आपने उस दूसरे प्लांट का जिसको आपने वैरायटी बी कहा था और उसको आपने मेल पेरेंट लिया है, उसमें से आपने एंथर्स पेट्री डिश के अंदर कलेक्ट करके विद द हेल्प ऑफ कैमल हेयर ब्रश, वो आपके पास पेट्री डिश होगी, वहां से कैमल हेयर ब्रश के साथ आप यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई हमें इसको कैमल हेयर ब्रश यूज करते हैं, इसके ऊपर जो है जिस तरह मेकअप वाला ब्रश होता है उसके ऊपर ना छोटे छोटे वो धागे से होते हैं थ्रेड टाइप, बिल्कुल फाइन। उसके साथ जब हम यहाँ इस तरह से वो पेट्री डिश में से पोलन उठाते हैं और डस्ट करवाते हैं, तो जिस तरह मेकअप के अंदर वो चीज़ें थ्रो होती हैं ना, उसी तरह उसके ऊपर जो पोलन वो बर्स्ट हो जाते हैं, वो जो शेड होते हैं, ठीक है। जब आप वैरायटी के साथ रिमूव द पेपर बैग आपने किया वैरायटी ए का, वैरायटी बी जो थी हमारे पास मेल पेरेंट, उसका पोलन आपने इसके ऊपर शेड किया किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ कैमल हेयर ब्रश। तो अगेन आपने जो फीमेल थी उसको कवर कर देना उसी बैग के साथ जो आपने पहले उसका रिमूव किया था, ठीक है। अगेन, और ये आपने जो पोलिनेशन करवानी है मेज की, मैंने सेल्फिंग में भी बताया कि आपने 4 to 5 टाइम ये प्रोसेस रिपीट करना है। क्यों कि आपकी सक्सेसफुल पोलिनेशन हो, फॉर सक्सेसफुल पोलिनेशन वी हैव टू रिपीट अवर पोलिनेशन प्रोसेस 4 to 5 टाइम्स। तो पोलिनेशन 4 से 5 दफा अगर करवाते हैं, दैट एंश्योर गुड सीड सेटिंग, उसके साथ आपकी सीड सेटिंग भी अच्छी हो जाती है और आपको नेक्स्ट जो सीड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाते हैं। कट द सेल, अगर सिल्क की मैंने आपको पहले बताया कि अगर सिल्क की लेंथ जो है 1 इंच से ज़्यादा है तो आप उसको 1 इंच रहने देते हैं, रिमेनिंग सारी आप काट देते हैं, जो हम दूसरी वीडियो के अंदर भी था। स्टेरलाइज, अगेन हमने वही काम करना है, स्टेरलाइज योर हैंड एंड इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ मिथाइलेटेड स्पिरिट, कि जो मिथाइलेटेड स्पिरिट है उसके साथ आपने अपने हैंड्स को, हाथों को भी स्टेरलाइज करना है और आपने अपने जो सीजर जो भी चीज़ें यूटिलाइज की उनको भी स्टेरलाइज करना है, टू अवॉइड द चांस ऑफ कंटेमिनेशन फॉर द अदर प्लांट्स। एक तो इस प्लांट के लिए भी और अदर प्लांट्स के लिए भी। अब हमारे पास फोर्थ एंड लास्ट प्रोसीजर जो है वो लेबलिंग का, दैट्स मोस्ट इफेक्टिव। लेबलिंग के अंदर आप क्या करते हैं कि नेम ऑफ क्रॉस लिखते हैं, क्रॉस के अंदर आपने फीमेल का नेम पहले लिखना है। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास हमने यूज़ किया फीमेल और बी हमने यूज़ किया एज ए मेल, ए इंटू बी, नेम ऑफ फीमेल कम फर्स्ट देन मेल, देन डेट ऑफ एमेस्कुलेशन, एमेस्कुलेशन क्या थी, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट इज नोन एज एमेस्कुलेशन। तो जिस दिन हमने मेल जो फीमेल जो हमने यूज किया उसके ऊपर वाला टेसल था उसको हमने क्या किया, कटिंग कर दी, उसको हमने रिमूव कर दिया, दैट इज डेट ऑफ एमेस्कुलेशन। फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट इज 28th of October, दैट इज एमेस्कुलेशन डे। देन नेक्स्ट डे और अनदर डे, जिस दिन भी आपने पोलन को कलेक्ट करके इसकी पोलिनेशन करवाई है, फॉर एग्जांपल 28 को आपने मैस्कुलेशन करवाई है, 29 को आपकी पोलन आपको मिल जाता है, तो आप क्या करते हैं, या आपको सिल्क नज़र आना शुरू हो जाता है तो आप उसकी पोलिनेशन 29 को करवा देते हैं, 30 को करवा देते हैं। तो ठीक है, 30 को आपने फॉर एग्जांपल करवा दी 2 दिन बाद। देन आपका जो लेबल बनेगा ए क्रॉस बी, अगर मैं आपको भी लिख के बताऊं तो आपका जो लेबल है वो इस तरह से बनेगा कि आपने जो फीमेल वैरायटी यूज की थी, दैट इज द फीमेल वैरायटी इज A and male variety is B, then 28th October 2020, 30 October 2020 and then sign. This type of label we have, see that A is male, a female, B is the male plant, and then date of pollination, that is 28th October, and then date of pollination which is 13th October, and at the last we have the signature. Why we use the signature? Sometimes you do this process by yourself and sometimes your subordinates or your coordinates, your colleagues do the same procedure, and to
recognize what you have done, what your colleagues have done, and what your students have done. That signature will give the identification, and you have to make this tag with the help of lead pens. Thank you so much. If you have any question, you can ask through WhatsApp, you can use your class WhatsApp, you can use this YouTube media. You are free to contact me. आपको अगर इस चीज़ के अंदर कोई भी क्वेश्चन है तो आप दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं. वीट क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है. इसके अंदर एक ही प्लांट के ऊपर मेल फीमेल है, लेकिन मेल फ्लावर डिफरेंट पोजीशन पे है. मेल फ्लावर जो एट द टॉप है जिसको हम टेसल कहते हैं, और फीमेल फ्लावर जो वो मिडल में आता है जिसको हम कॉप कहते हैं. ठीक है, तो होप सो आपको ये दोनों वीडियोस देखने के बाद डिटेल लेक्चर की समझ आ जाएगी, और मैं आप लोगों के साथ ये इसका जो वर्ड की फाइल है वो और एक पावर पॉइंट की स्लाइड्स है वो आप दोनों से मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा. थैंक यू सो मच.